Everyone, I'm starting from the topic Ayub Khan, and Ayub Khan is the topic of this class. Ayub Khan. Beta, Ayub Khan was president of Pakistan. Ayub Khan was president of Pakistan. Ayub Khan was president of Pakistan between the year 1958 till 1969. जी बेटा, अयूब खान was president of Pakistan between the year 1958 till 1969. He was the one who introduced many Ali Sajjad, बैठिए बेटा, who introduced many domestic policies. Number one in the domestic policies of Ayub Khan. जी बेटा, domestic policies of Ayub Khan में the first point is constitutional policies. Number one is constitutional policies. Beta, first of all, can anyone tell from online students what is the meaning of the word domestic policies? What is the description of the word domestic policies? Policies within the boundary of the country are called domestic policies. वो policies जो country की boundary के अंदर की जाती हैं, start की जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? We call them domestic policies. जी online students, domestic policies में हम पहली पॉलिसी अयूब खान की कर रहे हैं. डोमेस्टिक पॉलिसी में तो फर्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी. मींस हाउ ही मेड लॉज फॉर द कंट्री. लॉज है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉज ही होते हैं ना. कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली द सेट ऑफ लॉज. द फर्स्ट पॉलिसी इज 1962 कॉन्स्टिट्यूशन. बेटा, in the 1962 constitution, the main thing is which type of government system was there? Presidential. Ayub implemented this constitution in 1962. And main features were beta, what were the main features of this constitution? What were the main features? The first feature was presidential form of government was introduced. Presidential form of government was introduced. G online students, beta, what is the meaning of word presidential form of government? What does it mean? What is the meaning of presidential form of government? President has more power. The head of government is president, was president basically. The government was controlled by president of Pakistan. Yes. And presidential system of government was introduced, plus president must be Muslim. President must be Muslim. There was no prime minister in it. Must be Muslim. Then president had power to appoint and dismiss all the high ranked officers. G online students, beta? No. President had powers to dismiss
and appoint high ranked officers, जी बेटा, हाई रैंक्ड ऑफिसर्स वर देयर। तो जो जितने भी ऑफिसर्स हैं, मिलिट्री के हाई रैंक्ड ऑफिसर्स, इसके अलावा जुडिशरी के हाई रैंक्ड ऑफिसर्स, ऑल दोज ऑफिसर्स को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट, बंगाली एंड उर्दू वर, yes, Bengali and Urdu were national languages. Apart from that, beta, objective resolution which was made by Liaquat Ali Khan and Khwaja Nazmuddin, उसका भी इसमें कुछ रोल था. That was added in the preamble. Further, objective resolution was added in preamble, and there was equal representation of East Pakistan and West Pakistan in assembly, and there was equal representation of East Pakistan and West Pakistan in assembly. दोनों की कितने कितने सीट्स हैं? 150 और 150। 150 ईस्ट पाकिस्तान की सीट्स होंगी असेंबली के अंदर और 150 ही वेस्ट पाकिस्तान की होंगी। दैट वाज द मेन थिंग। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, अब इसके बाद जब ये फीचर्स आप लिख लेते हैं तो आफ्टर राइटिंग द फीचर्स you people have to write the analysis of this paragraph. इसके पैराग्राफ का एनालिसिस, जो ये बार बार मैं चीखता रहता हूं कि व्हाट इज एनालिसिस, व्हाट इज एनालिसिस, तो एनालिसिस इज द पार्ट व्हिच इज मैंडेटरी टू गेट at least 12 marks in the 14 marks question. Out of 14 कितने? 12 नंबर कम से कम आते हैं। अगर अच्छे एनालिसिस किए तब आ जाते हैं आपके। लेकिन अगर आप एनालिसिस ना हो, अब इसका एनालिसिस क्या है कि दिस डोमेस्टिक पॉलिसी ऑफ यू, दिस डोमेस्टिक पॉलिसी ऑफ अयूब खान, दिस डोमेस्टिक पॉलिसी ऑफ अयूब खान, इसका क्या फायदा था? व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ दिस डोमेस्टिक पॉलिसी of Ayub Khan? Ended constitutional crisis, ended constitutional crisis. This domestic policy of Ayub Khan ended constitutional crisis and stabilized political system which reduced law and order issues, from the country. अब ये बेटा कितनी लाइनों का एनालिसिस मैंने किया? How many lines are there in the analysis? 3 lines. आपका हर पैराग्राफ के अंदर कम से कम 3 से 4 लाइंस का एनालिसिस होना जरूरी है। बेटा कितने पॉइंट्स का एनालिसिस करेंगे आप? कितने मार्क्स, कितनी लाइंस में? कम से कम 3 to 4 लाइंस एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। अभी मैंने क्वेश्चन के साथ लिंक नहीं किया, अभी मैंने hence this made 1962 constitution
a successful domestic policy. आप समझ आ गई कि आखिरी लाइन जो है ये एनालिसिस का पार्ट है, लेकिन दिस इज बेसिकली द लिंक ऑफ दिस पैराग्राफ विद द क्वेश्चन स्टेटमेंट. ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ लिंक अप होता है, क्योंकि क्वेश्चन आपका आता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक पॉलिसी ऑफ अयूब खान, तो उसमें आपने 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना है. देन यू हैव टू गिव द एनालिसिस ऑफ इट. तो दिस इज द वे you will write the analysis of every single point. जी online students, is it clear beta? Online students, is it clear? Yes, no? Is it clear beta? Yes. Everyone? Yes, sir. जी बेटा. Is it clear? Umar, is it clear beta? Okay जी. Next question is next point in the constitutional policy is PODO and ABDO. PODO and ABDO. Beta, if we talk about PODO and ABDO, PODO and ABDO are the two laws. PODO is public. Now I'm writing the full form of these two laws. PODO is public. O stands for officers. D stands for disqualification. And O stands for ordinance. Beta, public officer disqualification ordinance. What is the meaning of the word public officer? Public officer is government officer. Public officer are all the government. Public officers are always, these are all the government officials. Is it clear? Then ABDO. ABDO is elected bodies. Elected bodies disqualification ordinance. Now look at this word, PODO and ABDO. These are the two laws. बेटा ऑर्डिनेंस किस लॉ को कहते हैं? ऑर्डिनेंस भी लॉ होते हैं और एक्ट भी लॉ होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट स्लैश ऑर्डिनेंस? दोनों तो बेसिकली लॉज हैं. व्हाट इज द डिफरेंस इन दीज टू टाइप्स ऑफ लॉज? द लॉज विच आर मेड बाय पार्लियामेंट, उनको हम कहते हैं एक्ट. जो लॉ पार्लियामेंट बनाती है, लॉज बाय पार्लियामेंट जो होते हैं बेटा, उनको क्या बोलते हैं? एक्ट बोलते हैं. और जो लॉ प्रेसिडेंट बनाते हैं, जब कंट्री में प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता है तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसमें तो ऑर्डिनेंस ही बनेंगे सारे. तो ऑर्डिनेंसेस वर पास्ड. अब व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दीज टू लॉज? पर्पस दोनों का सेम था. द पर्पस ऑफ दीज लॉज, यस, पर्पस of these laws, purpose of these laws, अली मूसा लिख लिया बेटा, ये यहां तक ठीक है? Yes, sir. Okay. Purpose of these laws was to reduce corruption. Purpose of these laws was to reduce corruption. So corruption कौन कौन लोग कर रहे थे? Corruption by public officers, and what is the meaning of elected bodies? And by
बाय पॉलिटिशियंस। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या इलेक्टेड बॉडीज किनको बोलते हैं? पॉलिटिशियंस को, जो इलेक्शंस के थ्रू बनते हैं ना, गवर्नमेंट में आते हैं, दे आर पॉलिटिशियंस। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये करप्शन, क्या इसने खत्म की करप्शन? नो। तो अब इसका एनालिसिस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव एनालिसिस विल बी देयर। यस, हाउएवर these laws could not fulfill its target. These laws could not fulfill its target, and Ayub used these laws to remove Ayub used these laws to remove his political opponents to remove these laws to remove his political opponents. Hence, this policy could not fulfill its desired target. This policy or this ordinance could not fulfill its desired. अब ये मैं एनालिसिस साथ साथ करना सिखा रहा हूं। आई डेफिनेटली फेल्ट दैट कि आपके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स 14 मार्क्स क्वेश्चन में एनालिसिस में करते हैं। मैंने अक्सर बच्चों के पेपर्स चेक किए हैं, टेस्ट चेक किए हैं, बार बार मैं टेस्ट चेक जब भी चेक करता हूं, आपका सारों को कंटेंट, बहुत सारे बच्चों को याद है। 5-7 ऐसे हैं जिनको कंटेंट भी नहीं याद होता, 5 से 7 ऐसे हैं जिनको कंटेंट याद नहीं होता, लेकिन ज्यादातर का प्रॉब्लम्स क्या है? एनालिसिस का प्रॉब्लम। दैट इज व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस थिंग मोर देन एनीथिंग एल्स नाउ। इज इट क्लियर एवरीवन? अब भाई अल्लाह का वास्ते एनालिसिस शुरू कर देना। नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट टेस्ट से आपने एनालिसिस करना है। और इस वीक का टेस्ट क्या होगा भला? ज्योग्राफी का क्या टेस्ट होगा? पावर रिसोर्सेज हमने खत्म किया है, ठीक है? तो पावर रिसोर्सेज का बेटा इस वीक में टेस्ट होगा आपका। डन? ओके बेटा। नेक्स्ट इज, यस बेटा। सर अगर जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आए 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में सर, तो इसमें से हमने कोई से 4 फीचर्स बताने या सारे फीचर्स? 4 मार्क्स का आए तो 4 फीचर्स बताने हैं सिर्फ। सही है सर। ओके बेटा। डोमेस्टिक पॉलिसी नंबर 2 इज पॉलिटिकल पॉलिसी। दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल पॉलिसी। यस बेटा। Are policies the same thing as reforms? Yes. There's a very famous Yes. one as reforms. Yes, these reforms and policies are same. Political policies are reforms. Ji Tirsha. Political policies and reforms are, there is just one main political policy. Basic democracies. Basic democracies. Beta, basic democracies is called BD system. What is that system? BD system. Now, all the people who belonged to this policy, मतलब आप में से, मैं, मेरे साथ बासिल, मेरे साथ अबीहा, मैंने फिर अबीहा बोल दिया। सो अबीहा, फिर उसके साथ अयान, सारे अयान, ये सारे मेरे साथ अगर बीडी सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका टाइटल क्या होगा? ऑल द पीपल हु बिलोंग टू बेसिक डेमोक्रेसीज, दे आर कॉल्ड बेसिक डेमोक्रेट्स। बेसिक डेमोक्रेट्स। इज इट क्लियर बेटा? They are called basic
डेमोक्रेट्स इनको बोला जाता है। मतलब अगर मैं इस सिस्टम का पार्ट हूं तो आई विल बी कॉल्ड, बासिल क्या बोलेंगे मुझे? बेसिक डेमोक्रेट्स बोलेंगे। इज इट क्लियर? डन एवरीवन? नेक्स्ट, what was that basic democracy system? It was 4-tier system। याद रखना है, ये 4 टीयर बना लें अपने पेपर में, आप भी अपनी कॉपी में बना लें। दिस वॉज 4-tier system। सॉरी, इस साइड से नहीं आपने शुरू करना, वन आपने हमेशा नीचे से शुरू करना है। 1 2 3 or last tier is 4. What is the meaning of the word tier? Level. It was, The stage. yes, it was 4-tier system। Now what were the 4 tiers in it? Number 1, सबसे पहला tier क्या था? The lowest and the smallest tier was Union Council। What was the lowest tier? Union Council। What was the second tier? No, Tehsil Council। Tehsil Council। What was the third tier? District Council। And what was the fourth tier? Divisional Council। Yes, beta। Online students, beta, how many tiers are present in basic democracy system? कितने tiers हैं बेटा? जी तिरशा, how many tiers are there in basic democracies? 4 tiers। अब 4 tiers में से सबसे छोटा tier कौन सा है? Union Council is the smallest tier, lowest tier। अब बेटा on this lowest tier 80,000 basic democrats were elected by people। On this tier not 40, 80,000 basic democrats। On this tier 80,000 basic democrats were elected। कितने लोगों को इलेक्ट करते थे बंदे? पाकिस्तान के लोग कितने बंदों को इलेक्ट करते थे बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कितने लोगों को इलेक्ट किया जाता था पूरे पाकिस्तान से? 80,000। जी, इनमें से 40,000 फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान थे एंड 40,000 फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। 80,000 लोग थे। अब 80,000 लोगों को हम एक बात करते हैं कि उन 80,000 पीपल में से यू पीपल आर फ्यू बेसिक डेमोक्रेट्स। आप में से मैं कुछ को टीयर 1 में रख लेता हूं, कुछ को मैं टीयर 2 में भेज देता हूं, कुछ को मैं टीयर 3 में भेज देता हूं और कुछ को मैं टीयर 4 में भेज देता हूं। ये 4 लेवल्स के ऊपर दे वर रनिंग द गवर्नमेंट। दीज पीपल, 4 tier system and basic democrats were running administration। Basic democrats were running administration at 4 levels, although they were elected at यूनियन काउंसिल। ये सारे इलेक्ट यूनियन काउंसिल लेवल पे होते थे, लेकिन ये सारे यूनियन काउंसिल लेवल पे इलेक्ट होते थे, लेकिन इनको फर्दर किन किन डिवीजन्स में भेजते थे? they were sent into different councils like district, divisional, tehsil, union। so they were sent in these 2
काउंसिल्स। और इनका काम क्या होता था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दीज बेसिक डेमोक्रेट्स? एडमिनिस्ट्रेशन करना लोकल एरियाज में। फॉर एग्जाम्पल F10 इज वन यूनियन काउंसिल। F10 इज वन यूनियन काउंसिल। F10 के अंदर एक बेसिक डेमोक्रेट होगा जो इस इलाके के अंदर स्ट्रीट लाइट्स देखेगा, रोड्स देखेगा, सीवरेज सिस्टम देखेगा। यहाँ पे जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन लुक आफ्टर करेगा? बेसिक डेमोक्रेट करेगा। तो दैट वाज द मेन पर्पस। दे वर आल्सो गिवन फर्दर these 80,000 people, these 80,000 people were given power to elect president. So elections of president directly country में होगा या it would be dependent on the basic democrats? But what if the basic democrats only elect the members of the assembly? Yes, they were also electing the cabinet of the president. Clear? अच्छा, अब ये देखें, however, although this system, अब ये इसका एनालिसिस करूंगा मैं, although yes, although Ayub made this system to spread democracy at grassroots level, to spread. Beta, do you know what is democracy? A rule of the government by the people for the people. Government of the people for the people by the people. सर जिसमें इलेक्शंस के थ्रू गवर्नमेंट Elections के through गवर्नमेंट government. सेलेक्ट होती है। Although Ayub made this system to spread democracy in Pakistan, however, this system failed. However, this system failed. क्यों फेल हुआ? Failed due to सर three क्योंकि main लोगों को points. आम लोगों के पास राइट नहीं था वोट करने का। नहीं, आम लोगों के पास 80,000 को तो 80,000 लोगों को तो लोग ही चूज करते थे ना। 80,000 लोगों को तो मैं और आप ही वोट देते थे। बेसिक डेमोक्रेट तो हमारे वोट से बनता था, फिर हमारे वोट से जो बंदा बनेगा वो आगे प्रेसिडेंट। सही है सर, वो आगे वोट इनडायरेक्ट प्रेसिडेंट तो चूज हो रहा था हमारे ही वोट से ना। लेकिन ये क्या था, इन लोगों को जब बेसिक डेमोक्रेट्स को फंड्स मिले फॉर मेंटेनिंग देयर एरियाज, उन फंड्स को क्या किया इन्होंने? आपके एमएनए और सर एमपी को करप्शन आपके करते इलाकों थे। को फंड्स मिलते हैं, क्या करते हैं? They used to bribe the Yes. basic democrats. ये बात में अगला पॉइंट है। तो ड्यू टू करप्शन, illiteracy and they were, जी माने आप, and these were banned by। अब बेटा इसमें अगर आप देखें तो इनमें तीसरा पॉइंट है, and these democrats were bribed to vote Ayub Khan मतलब वो अयूब खान के वोट करना था अयूब खान की फेवर में। मतलब इन्होंने दे बेसिकली ब्राइब टू वोट अयूब खान इन 1965 presidential elections सर against फातिमा जनाब। यस बेटा। सर तो इस सिस्टम और जो आजकल पार्लियामेंट का सिस्टम है सर, उसमें मतलब वोटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है? आज सर, की क्योंकि- वोटिंग में वो सर जो आजकल वोटिंग होती है सर, उसमें भी तो पार्लियामेंटेरियंस ही वोट दे के प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं ना। जी बेटा, वो प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी तो होना पड़ता है ना। प्राइम मिनिस्टर खुद भी तो इलेक्शन के थ्रू ही आता है ना। पार्लियामेंट, अगर प्राइम मिनिस्टर को 2 इलेक्शन पास करने होते हैं आजकल के जमाने में,
पहला इलेक्शन उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतना है, पहला इलेक्शन उसने अपने हल्के से जीतना है, जहां से उसने अपने आप को चूज करना है मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। अगर वो नेशनल असेंबली का मेंबर बनेगा, देन ही इज एलिजिबल टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। इज इट क्लियर? समझ आ गई? मतलब उसको डबल इलेक्शन कराना पड़ता है ना, दैट इज द मेन थिंग। इज इट क्लियर बेटा? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अब मुझे बताएं इसके अंदर अभी एक फ्लॉ है। देयर इज वन फ्लॉ इन दिस एनालिसिस। एंड पे एक स्टेटमेंट लिखनी थी मैंने, हेंस वाली स्टेटमेंट जो है वो एंड पे लिखनी है मैंने। अभी ये एनालिसिस करने के बाद हेंस देना होता है। सो हेंस दिस डोमेस्टिक पॉलिसी was important but Ayub misused it to gain support. Misused to gain support. Is it clear everyone? जी clear है बेटा? अब ये कितनी पॉलिसीज हमने कर ली? हाउ मेनी पॉलिसीज वी हैव डन सो फार? हमने कॉन्स्टिट्यूशनल में कितने पॉइंट्स किए हैं जी? हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव डन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल? 2 पॉइंट्स। व्हाट वर दीस 2 पॉइंट्स जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? व्हाट वर दीस 2 पॉइंट्स? 1962 कॉन्स्टिट्यूशन किया, दूसरे पॉइंट में वी डिड ओडो एंड एब्डो, और तीसरे नंबर पे हमने एक और पॉलिसी स्टार्ट की, दैट वाज पॉलिटिकल पॉलिसी। पॉलिटिकल पॉलिसी में वी हैव डन 1 पॉइंट। व्हाट वाज द 1 पॉइंट इन पॉलिटिकल पॉलिसी? BD सिस्टम। इज इट क्लियर एवरीवन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। जी बेटा, आपको आवाज आ रही है ठीक से मेरी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? यस सर। यस सर। जी बेटा, चले अब यहां तक हमारा आज का